everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. So today let's do a pick a card on something super interesting. This is inspired by one of the personal guidances that I have done over the years, and let's talk a bit about it. So the inspiration that goes behind is ki all of us in our lives, we have that one person, especially that kind of a friend mostly. Sometimes we also have it in our relatives, but let's keep it specific to our friend circle so that it can get you more closer insights. तो हम सब के पास एक वैसा friend होता है जो कि we are very confused whether this is our friend or this person is something else. This person could be a male friend, female friend, कुछ भी होने दो. That is, the gender is not a consideration, but the consideration is the intent. जैसे कि वैसे दोस्त ही है वो हमारा, दोस्त ही है वो हमारी, लेकिन उसका behavior थोड़ा weird रहता है, as if कि you understand this gaslighting thing where they say something but mean something else and they always keep you confused. So let's try to do some relationship dynamics exploration if you had this kind of person in your life or if you are having this kind of person in your life. तो हम इस reading में, pick a card reading में, totally I will help you explore the relationship dynamics that you had with this person, of course with the help of our spirit guides who will only give us the divine truth that was part of your relationship. And अगर relationship dynamics थोड़ा detail हो जाता है तो of course I will keep this video limited to relationship dynamics, but there will be a sequel to this video whereby we will also explore the intention that this person had towards you, their feelings, and of course what was their expectation. ठीक है, तो चलो let's explore this very interesting and very pertinent pick a card reading. तो चलिए हम पहले, इसके लिए मैंने ये वाला कार्ड चूज किया है कि हम इसको लेंगे. So let's see. God's Goddess Angels, Archangel, God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us. Okay, for this reading, for this timeless pick a card reading where we want to know, explore the relationship dynamics that we had with this friend of ours who always kept us confused, or we were always confused about what kind of person they are and what kind of intention they had with us. So can we please get a little clarity on the relationship dynamics that we had with this person? Okay, so now with the intention set, let's see what was this card. Dark Man. Now do you see this, the way we have channeled? हमने ये वाला card कब pop out हुआ है? When we had already set the intention that we want to know about this person who was very mysterious to us. Their ways were very mysterious to us. तो उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. और spirit guides have given us a head go. All right, let me take this magnifying glass and see it easily. Dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. All right. So how interesting. We are talking about a friend who kept us always confused with their weird ways, and we have this card. So I think spirit guides are liking this pick a card reading, theme. तो चलो हम देखते हैं. Spirit guides, can we please have 3 cards to explore the relationship dynamics of the viewers with this person? Can we please have the 3 cards? Thank you so very much. So let's see. I will certainly take this one here. 1. I'll take this one here. 2. And let me take this one here, this one. ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, ये है हमारा सेकंड वन. Let's keep the suspense on by not revealing what is really inside that.
So which one should we take? Let's take the brown jasper, let's take the clear quartz here, and let's keep our aquamarine here, guys. And here is the dark man. We're gonna be exploring our very confusing relationship dynamics that we had with this person. Let's see what kind of relationship you had with this person. This could be a male friend, female friend, doesn't really matter. So choose the pile or the stone that you really feel drawn to, guys, and I will see you in your pile. See you there. Hello, pile number 1. Welcome to your reading. Let's see what card you have chosen, and your card is Mule. Someone is extremely stubborn. Oh, wow. And unwilling to change. So quite possibly जिस भी इंसान जो भी आपका dark man है, see, the very fact that we have got this dark card coming out of nowhere as we set the intention means that there looks like there is some shadow side to this person. There is some, maybe, because this is a dark man. So dealings and relationship with a man with a dark complexion or hair. Looks like some shadow side to this person. And यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया है, someone is extremely stubborn and unwilling to change. So your person, this could be male, female, anything, was very stubborn, of course, as the card says, and unwilling to change. तो काफी stubborn लोग होंगे और अपनी ही जिद करते होंगे, very bossy, my way or highway kind of a person. और अगर कोई स्टबर्न है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा है, जो उसको सही लगता है वही वो कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात हो गई कि हमारा अस्तित्व उसके सामने क्या है. क्योंकि अगर हम किसी को रिगार्ड्स देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इट्स ऑलवेज लाइक टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड एडजस्टिंग. लेकिन यहाँ पे तो ये इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा था आप कि कोई भी, तो इट्स मोर लाइक लुक्स लाइक अ वन साइडेड थिंग, जहां पे आप ही को शायद ज्यादा कंसर्न था और उसे नहीं था. वी नेवर नो. बट हाँ, वो डेफिनेटली जो भी इंसान के बारे में आप अभी सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हैं आप, वो इंसान काफी जिद्दी था, स्टबर्न था. वो अपने आप को आपके लिए चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. इट्स मोर लाइक अ माई वे और हाईवे फॉर दैट पर्सन एज फार एज हिज रिलेशनशिप विथ यू इज कंसर्न. नाउ लेट्स गेट सम मोर गाइडेंस. Mule and mural, how interesting. Be your own first priority. And how beautifully is this gelling with each other. Not only in terms of meaning also, but in terms of the color combination भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है. और एक से we are moving from one step to the next step, moving higher, understanding things better. Mural, be your ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. यानी कि हमने अभी यहाँ पे बात ही की है कि अगर कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपना ही जिद करके बैठा है, स्टबर्न है, आपके लिए थोड़ा सा भी चेंज नहीं होने को तैयार है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप पे क्या बीत रही है उसके बिहेवियर से, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप उनको ज्यादा भाव दे रहे हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो, बट यू आर स्टिल एन ऑप्शन इन देयर लाइफ. और जहां पे आप उसके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, तो डेफिनेटली क्योंकि आप इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो अपने आप को क्यों चेंज करेगा आपके लिए, ये समझने वाली बात है. तो यस, यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी, उनको आपने प्रायोरिटी बनाया, जबकि आप उनके लाइफ में शायद बस एक ऑप्शन ही थे. और आपके लिए भी ये जरूरी था कि आप अपने इंपॉर्टेंस को इतना नीचे नहीं करते. आपको शायद सेल्फ रिस्पेक्ट से काम लेना चाहिए था. यू शुड हैव एक्सपेक्टेड सम इक्वल अमाउंट ऑफ म्यूचुअल लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जो कि पता नहीं क्यों आपने ध्यान नहीं दिया. शायद यू आर ऑलवेज गिविंग दैट पर्सन अ चांस टू गेट बेटर, अंडरस्टैंड यू. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी, वाओ, बैक ऑफ द डेक, लेट मी टेक दिस कार्ड फॉर यू गाइज. शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड दिस पर्सन. यानी कि जिस भी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, द ओवरऑल थीम ऑफ द पिकर कार्ड इज द डार्क मैन. जैसा कि हमने थीम, व्हेन वी वर सेटिंग अप द थीम. सो दिस इज valid across the piles, but yeah, this is your person, very stubborn and all. Shark tha, while you were this dolphin, this person was shark. This could be male, female, anybody, guys.
as I'm repeating again and again. Swim away from this situation. आपको अपने आप को प्रायोरिटी बना के उसकी you shouldn't have entertained their जिद्दीपन. You shouldn't have entertained their stubbornness, their ego, their high-handedness. आपको जरूरत नहीं था, लेकिन because maybe you know you are very good with heart, you were giving them chance, you really wanted this relationship, you valued this relationship. और ये होता है जब हम relationship को value करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू करने से हमारी रिलेशनशिप हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन के हमारा वीकनेस बन जाता है, और वही वीकनेस क्या होता है, द अदर पार्टी स्टार्ट्स एक्सप्लॉइटिंग वंस दे गेट टू नो ऑफ इट. देन इट्स ऑलवेज हाई माई वे और द हाई वे. तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी इंसान के बारे में देख रहे हो ये रीडिंग, आप बेसिकली यू वर डीलिंग विद अ शार्क, एंड शार्क दे आर डेंजरस creatures, right? So you should have actually distanced yourself from this person, because quite possibly this person with this gray, you know, shark tail was maybe even gaslighting you and misusing your goodness. तो ये रहा जिद्दी इंसान in the face of a what? Shark. अब मैं ये वाला कार्ड आपका यहाँ पे रख देती हूँ, एंड ये तो खैर हम सबके लिए वैलिड है, ये रीडिंग के लिए ही स्पिरिट गाइड्स ने वो कार्ड दिया है, तो इट्स गोना बी वैलिड फॉर दैट. चलो यहाँ पे ये रख लेते हैं. अब हम क्या करेंगे कि अब आपको मैं रिलेशनशिप डायनामिक्स एक्सप्लेन करूंगी. इसका टोटल डिटेल में हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर चीज इस इंसान से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है ना, उस पर क्लैरिटी मिले. लेट्स पुल वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. But yes, you were dealing with a shark. डार्क पर्सन, शेडी इंसान. ये पूरी रीडिंग ही जो पिक कार्ड है वो एक शेडी शैडो साइड के इंसान से डीलिंग्स के बारे में है हमारी. रूम. I don't know why we have got this room का card, but maybe you know something happened in the room. Something happened in the closed doors, maybe with this person. You never know. Gift. Room and gift. Something here. Room और gift है यहाँ पे. दोनों ही जगह अगर हम देखें तो एक इंडोर्स का सीन है. टेबल पे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं. शायद इस इंसान ने गिफ्ट दिया होगा, या कुछ गिफ्ट से रिलेटेड चीजें हुई होंगी. रूम से रिलेटेड, डेफिनेटली इंडोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ एस्पेक्ट्स आपके जुड़े होंगे इस इंसान से. ठीक है ना? ऑल राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टैरो गाइडेंस गाइस. We will see complete detail of the relationship dynamics that you had with this person. Excuse me, guys. God's guidance, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for pile number 1. What is that they need to know about their relationship dynamics with this person they are thinking about? Yes, we have the card. Two of Swords in reverse. You were always confused about this person. कितना interesting है कि we are talking about something so what do we call this person? कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी. और हमने ये वाला डेक यूज किया है, और इस डेक में जो 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है, 2 ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ व्हाट? कंफ्यूजन. और यहाँ पे इस इंसान का चेहरा ही नहीं है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है, उसके बहुत सारे चेहरे थे. सी हियर इज वन चेहरा, हियर इज अनदर चेहरा. इसका अपना चेहरा कौन सा है? ये वाला चेहरा है कि ये वाला चेहरा है? यू वर ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज. यू कुड नेवर मेक आउट, बिकॉज इस इंसान के दो चेहरे थे, और शायद ज्यादा भी चेहरे होंगे, यू नेवर नो. बट 2 ऑफ सोर्ड के साथ 2 चेहरे तो डेफिनेटली थे, और ये इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से ये दोनों में से कोई भी चेहरा आपके सामने ओढ़ता होगा. सो जस्ट अ रैंडम थॉट देयर. लेट्स कीप गोइंग. किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है ये. सबकॉन्शियस लेवल में चेक करते हैं कि कैसी थी एनर्जी. 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. पास्ट में कैसा था रिलेशनशिप आपका?
क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो आप देख रहे हो ना, ये वाली एनर्जी आ रही है। एक ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी, काफी नर्चरिंग, ऑलवेज फॉरगिविंग द अदर पर्सन, ऑलवेज टेकिंग द हायर रूट, बीइंग कंपैशन, काइंड। लेकिन ये इंसान जो था, ये कौन था? किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में था, यानी कि ये अपने पूरी तरह से शैडो एनर्जी में था, शार्क था, जबकि आप अपने डॉल्फिन की एनर्जी में थी। काइंड, प्लेफुल, इमोशनल, नर्चरिंग, टेकिंग केयर। बट ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, ही वॉज द नेगेटिव अवतार। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड। गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, ठीक है। एटीट्यूड क्या थे आपके रिलेशनशिप का? टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है ये। वेरी इंटरेस्टिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट इन रिवर्स। होप्स एंड फियर्स क्या थे? 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स में दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस करते हुए। ओके, बैक ऑफ द डेक में चेक करते हैं। बैक ऑफ द डेक में हमारा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स का। एज इफ यू नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग या इंट्रीगिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑलवेज अबाउट द फॉर्च्यून कमिंग योर वे, बट दिस figure looks very worried about something here. But why she looks so worried? Anyways, यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है, यानी कि चीजें तो ठीक नहीं हो रही है। मे बी इट वॉज नॉट फेटेड टू, this relationship was not fated. Wheel of fortune is about fate, and wheel of fortune ulta hai, so it is, this relationship was not meant to be. And obviously, why should this relationship should be meant when you are so different, when you are dealing with a shark? शार्क के साथ अगर रिलेशनशिप सही हो भी जाती तो लाइफ कैसी होती, ये सोचने वाली बात है। ऑल राइट, यहाँ पे तो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का हमने डायनामिक्स देख लिया है कि आप लोग दोनों काफी अपोजिट थे। एक शार्क है, एक डॉल्फिन है। एक की नर्चरिंग एनर्जी है और एक की काफी ही मटीरियलिस्टिक एनर्जी विद किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल सकते हैं। काफी मटीरियलिस्टिक, वेरी एम्बिशियस, फोकस ऑन मटीरियलिज्म, ये सारी एनर्जी है। और या आप कंफ्यूज्ड थे हमेशा कि किस इसका चेहरा, इसका रियल चेहरा क्या है। दिस रिलेशनशिप वाज विथ टू ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग, कोर ऑफ हार्ट ऑफ द रीडिंग। आपकी मेन एनर्जी इस इंसान के लिए यही है कि आप ये इंसान का असली चेहरा आप पहचान ही नहीं पाए, और आप उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाए तो क्या आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि आप में ही कुछ कमी है समझदारी की, कि आप इसका असली चेहरा नहीं पहचान पाए? नो, ये इंसान ही अपने चेहरे को खाली रखता है, वेकेंट रखता है, और अपने सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो इससे चेहरा सही लगता है वो अपना चेहरा इस पे अप्लाई करता है। तो अगर आप इसको समझ में नहीं पाए हो ना, तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी को समझना, जो कि दो दो मुखौटा लेके बैठा है, समझना इतना ईजी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसा मैंने बताया, वेरी एम्बिशियस एंड ऑल दैट, मनी माइंडेड, एम्बिशियस, मनी के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए कुछ भी करने वाला इंसान हो सकता है ये। ऑल राइट, आपकी एनर्जी काफी नर्चरिंग थी विद द क्वीन ऑफ कप्स। रिलेशनशिप किस तरह का था? रिलेशनशिप पूरी तरह से बैगेज से भरा हुआ रिलेशनशिप था। मतलब कि ओके, अनदर थिंग दैट आई एम गेटिंग इज कि जब भी आप इससे मिल के आते थे ना बाहर, आप बहुत ही
एक भारीपन रहता था आपके लाइफ में। जैसे कि आप किसी से मिलते हो, हम दोस्त की बात कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप डायनामिक्स विद दिस पर्सन विच ऑलवेज कंफ्यूज्ड यू, कि आप उसको कभी समझ में नहीं पाए हो। तो जब भी आप इंसान से मिलते थे ना, आप जब उससे मिल के लौटते थे तो एक भारीपन रहता था सर पे, जैसे लगता था कि लाइफ बर्डन हो गया है, हर चीज़ भारी भारी लगता था, क्योंकि ये इंसान अभी शायद अंदर से बाहर आ रहा है और इसके ऊपर इतने सारे बैगेजेस आ गए हैं, बर्डन आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप इससे मिल के आते होगे, यहाँ पे भी हमारा रूम है और गिफ्ट है, तो ये इंसान हमेशा आपको गिफ्ट देता भी होगा तो एक बर्डन का गिफ्ट देता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके गिफ्ट्स हैं, यहाँ पे आपके गिफ्ट्स हो गए, यहाँ पे रूम है और यहाँ पे आपका गिफ्ट है। तो जब भी आप मिल के आए तो इसका ये एक बर्डन के रूप में आपको ये गिफ्ट देता था। ओके देखिए, एक चीज जो मैं पकड़ रही हूं यहां से, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, इसने आपके तरफ दोस्ती का हाथ मनी के कारण ही बढ़ाया था। ओके, या 10 of Pentacles, this person reached out to be friends with you or was interested in you only because of this financial angle to it। और यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इंसान मटीरियलिस्टिक है इन अ नेगेटिव वे। तो वो चीज़ें हैं, अपने मतलब के लिए इसने अपने आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होगा, या मनी स्टेटस, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मनी स्टेटस, ऑल दिस जो महामाया वाली चीज़ें होती है ना, इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो मनी है, पैसा है, या अदरवाइज भी मनी जो पैसा है, स्टेटस है, पावर है, ये सब चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इसने आपके तरफ दोस्ती का हाथ आपके पैसे, मटेरियल गेन्स के लिए ही बढ़ाया होगा। और राइट, यहाँ पे अगर हम 6 ऑफ सोर्ड में देखें तो सिक्स ऑफ सोर्ड पास्ट की तरफ क्यों जा रहा है? 6 ऑफ सोर्ड शुड गो दिस वे, इट्स गोइंग दिस वे। Six of Swords should go this way. This is coming this way. Queen of Pentacles in reverse. Yeah. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चैरियट है और ये दोनों सिमिलर सा लग रहा है। ये चैरियट जो है ये उल्टा है आपके एनवायरनमेंट में। एंड देखो, आप ज़्यादातर, क्योंकि आपको मैंने इस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि मटीरियलिस्टिक है, इमोशंस उतना वैल्यू नहीं है जितना कि मटीरियलिज्म है, मटीरियल गेन्स के लिए या उसको मद्देनजर आपके साथ दोस्ती बढ़ाई होगी एंड ऑल दैट। इसीलिए शायद आप हमेशा कंफ्यूज रहीं कि अगर इसके साथ दोस्ती भी हुई तो वाई दिस दोस्ती वॉज नॉट हैप्पी इनफ, क्योंकि इस इंसान को आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको मटीरियलिज्म में ही इंटरेस्ट था। मनी, पावर जो भी है प्रॉबली आपके साथ आता होगा तो उसमें ही इस इंटरेस्ट था। सो दैट इज वाई यू आर प्रॉबली कंफ्यूज्ड कि हर चीज़ होने पे भी ये उसमें ये एक एक रिलेशनशिप में एक कनेक्शन क्यों नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गई है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में। Alright guys, so let's pull a little clarifier here. अगर होप्स एंड फियर्स में देखूं आपका इस इंसान के साथ, तो 10 ऑफ सोर्ड था। 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड इज अगेन अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल, you carrying the 10 swords, but this person is nicely walking away. मुझे लग रहा था कि ये इंसान आपके आपकी तकलीफ को देखता था, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो इवन दो आपकी तकलीफ को देख के भी ये शायद आपके पास नहीं आया है। देयर आर 10 swords in your back, you are calling for help,
बट दिस पर्सन इज जस्ट वॉकिंग अवे, प्रिटेंडिंग कि इसने कुछ देखा नहीं है। इस तरह की चीज थी रिलेशनशिप में। और यहां पे अगर हम देखें तो टू ऑफ पेंटिकल इज अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स, राइट। यहां पे एक और इंसान क्यों बैलेंस कर रहा है? यहां पे भी एक तरह की ड्यूअलिटी है, जैसे कि टू ऑफ सोर्ड में दो चेहरे हैं। यहाँ पे दो पेंटिकल्स जो कि एक ही इंसान को रखना चाहिए, दो अलग अलग इंसान रख रहे हैं। आई डोंट नो इफ दिस पर्सन वाज काइंड ऑफ चीटिंग ऑन यू, क्योंकि ये पेंटिकल्स तो दो एक ही इंसान के पास रहना चाहिए ना। तो ये एक पेंटिकल्स इसके पास रखा है, एक पेंटिकल्स इसके पास रखा है। ही वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस हिज इमोशंस बिटवीन टू पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एक क्वीन ऑफ कप्स है। और मुझे लग रहा है कि क्वाइट पॉसिबली इसने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, लाइक दैट मनी के लिए प्रॉबेबली इसने he took, let's find out the clarifier for Queen of Pentacles in reverse so that we can get more clarity. क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है तो कैन वी हैव अ क्लैरिफायर फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? या व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी रिवर्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी रिवर्स में है। A journey, either physical or mental. Journey. डिनायल। शायद आपको पता था कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान शार्क है, बट आप उसको इग्नोर करते रहे। जैसे कि हम पहले भी बोल रहे हैं, ये इंसान आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट, लव जो आप डिजर्व करते हो, जबकि कोई भी रिलेशनशिप में हम डिजर्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा था। एंड येट आप अपने आंख पे पट्टी बांध के बैठे थे, एक्सपेक्टिंग दिस शार्क टू बी अ डॉल्फिन लाइक यू, बट दिस पर्सन वॉज टोटली अ शार्क। ओके, वो चीज देख रहे हैं। इसका अपना मतलब था रिलेशनशिप को रखने का। एंड सरेंडर टू द स्पिरिट। या आपने हर चीज कोशिश की इस इंसान को, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप को निभाने की आपने हर कोशिश की, मगर आप फाइनली इट वाज लाइक कि यू कुडंट हेल्प दिस पर्सन। या यू कुडंट हेल्प विद दिस पर्सन। Take a relaxing break sometimes, spend some time in nature, replenish yourself, feeling beauty and ecstasy. यहाँ पे भी आपका जो कार्ड आया है वो घर का कार्ड है, यहाँ पे नेचर में जाने का कार्ड है। आई डोंट नो, क्या इस इंसान ने आपको लॉक करके रखा हुआ था? व्हाट इज इट? क्या आपको कुछ हाउस अरेस्ट जैसे चीज में थे आप इस इंसान के साथ? क्योंकि दोनों कार्ड में घर का ही सीन आया है। यहाँ पे नेचर में जाने के लिए बोला जा रहा है। Could be something related with domestic abuse or violence kind of a thing. शायद आपने इससे लव मैरिज जैसी कोई चीज की होगी विथ नाइट ऑफ कप्स, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स काफी प्रेशर में है और काफी काम आ गया है उस पर। मैंने जो चीज एक्सपेक्ट करके आपने इसके साथ रिलेशनशिप किया होगा वो तो इट वाज वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने रिलेशनशिप को बहुत निभाने की कोशिश की, बट कुछ हुआ नहीं है।
10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंच गए आप इसके साथ। आप दुख में थे, तकलीफ में थे, दर्द में थे, बट दिस पर्सन काइंड ऑफ वॉकड अवे। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो रिलेशनशिप चैरियट की उल्टी रही है। रिलेशनशिप काफ़ी, आपकी जो रिलेशनशिप इस इंसान के साथ थी बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते से गई है। लाइक इट वॉज ऑलवेज अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके ही गई है। ये सब चीज़ें लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी जर्नी है, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं ना। Two of Pentacles in reverse. Yeah, taking your power completely. Taking your power. आपको शायद बार बार ये लगता होगा ना कि ये इंसान ठीक हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ते थे, फिर से आगे आ जाते थे इसके साथ ही कि ही विल इम्प्रूव। 6 ऑफ सोर्ड इज अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू आर लाइक ऑलवेज गेटिंग बैक टू हिम। आप वापस यू आर गेटिंग बैक टू बीइंग योर क्वीन ऑफ कप ऑल द टाइम, क्योंकि ये जो 6 ऑफ सोर्ड का ये जो व्हीकल है ना, ये पीछे की तरफ आ रहा है। ये यू ऑलवेज वर लाइक कि आप इस शार्क से कभी निकल नहीं पाए, क्योंकि यू आर ऑलवेज गोइंग बैक टू बीइंग योर यूजुअल काइंड एंड कंपैशनेट सेल्फ, ऑलवेज ऑपरेटिंग फ्रॉम योर लव। तो हमेशा बाहर जाने की जगह पे आप हमेशा अपने हार्ट से ही ऑपरेट करके आप इसको ट्रीट करते रहे। इसने आपको खाली बर्डन ही दिया, जब भी आप मिले इसने आपको बर्डन से लाद दिया, और ही पुश टू यू टू द कॉर्नर्स, टोटली टेकिंग योर पावर। यहाँ पे भी देखो फॉर्च्यून है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वॉज इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज ऑफ योर फॉर्च्यून, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है, रिवर्स में है। इस इंसान ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया मनी को लेके, पैसे को लेके, पावर को लेके, स्टेटस को लेके। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो इसका there was some fortune related with you which this person wanted. Okay. बाद में जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने अपना फॉर्च्यून पूरा ले लिया उसने, तब इसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। या बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उल्टी हो गई है, आई मीन कि शी हैज लॉस्ट ऑल हर मनी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया एंड उसके बाद दिस पर्सन इज नॉट रियली इंटरेस्टेड। इसी तरह की कुछ गाइडेंस आ रही है आपकी। तो अब हम देखेंगे इजी ब्रीजी मैसेज से क्या हमको कुछ और मिलता है गाइडेंस। काफी जो आपकी रिलेशनशिप इस इंसान के साथ थी ना, काफी ऊपर नीचे, इट वाज ऑलवेज अ बैटल। एक तो चैरियट का कार्ड एनवायरमेंट में है, इससे मैं ये समझ रही हूँ कि ये जैसे कि हम किसी से, इट वाज ऑलवेज अ कांस्टेंट यू नो अप्स एंड डाउन, जैसे कि कुछ सी लड़ाई पे जा रहे हो, उस तरह की रिलेशनशिप थी। कभी भी एक पीसफुल बैठ के शांत होके कुछ अच्छा सा चीज देख रहे हैं, उस तरह का नहीं था रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है मुझे। व्हाट्स योर थॉट्स? इस इंसान के साथ आपको ज्यादातर नेगेटिव ही फील होता था। यस, यू हैड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस पर्सन बट यू कुडंट ब्रेक फ्री। देख रहे हो ना आप, रन अवे फ्रॉम द शार्क। यू शुड हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम दिस पर्सन बट यू केप्ट गिविंग हिम चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस बिकॉज यू आर वेरी काइंड, है ना। 10 ऑफ सोर्ड, आपको लगा कि ये इंसान आपको आएगा, आपकी हाल को देख के आपको हेल्प करने आएगा, बट ये नहीं आया। और आपने हर चीज की और फिर फाइनली आपने तब छोड़ा जब कोई, मैंने यू डिड एवरीथिंग यू कुड डू। तो it was never like you there were many instances when this person showed you their true colors, that they were shark
and that should have made you run away and break free from this person. Look at this. But you never ran away from him. यही exactly I was picking this up कि ये तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, ये वापस क्यों आ रहा है. Yes, this person, ऐसा बहुत सारा instances हुआ होगा जिस पर जहां पे इस इंसान ने अपना असली चेहरा दिखाया होगा आपको, लेकिन still you were hanging on with this person, you were never walking away from this. You were like कि ये अपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आके आपने हर बार इसकी सिचुएशन को देखी, आपको लगा ये ठीक हो जाएगा, बट या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके साथ काफी थॉट्स में बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ जो आपकी जर्नी रही होगी, काफी जैसे हम बोल रहे हैं ना कि बैगेज के साथ आप आते थे, एक नेगेटिव थिंकिंग आपके गैस लाइटिंग करके वो अपने दिमाग में आपके डालता होगा, तो वो चीज हमको लग रही है. ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप्स में पकड़ा है आपके गाइस, ये हम जान पाए हैं. अगर मैं एक ब्लेसिंग ले लूं आपको, आपके लिए इस इंसान के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपको. ऑलमोस्ट ओवर. या आपने इस इंसान को बहुत टॉलरेट किया. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. Yeah, it's almost over. It was like, this person took your power. Get your power back. This person took your power, okay? क्योंकि वो कभी भी आपको रिगार्ड ही नहीं दे रहा है, वो अपना जिद्दीपन दिखा रहा है ना. यहाँ पे तो फर्स्ट कार्ड ही आपका वही आया है कि जिद्दी है ये अपना जो मन आता है वही करता है, आपका पावर लेता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालने का काम किया है इसने अच्छे से, और ये सारी चीजें हैं. एंड यू टॉलरेटेड दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइज. जैसा हम बार बार पकड़ रहे हैं ना कि जब तक कि आप कर सकते थे ना, एक्चुअली कोई भी इंसान कुछ समय पहले ही hang their boots, they would have hung their boots, बट आपने इस इंसान का हाथ साथ नहीं छोड़ा. It really tried your patience, taking your power and all. घर की एनर्जी आ रही है, जैसे कि घर में बंद करके रखा हो या घर में कुछ हुआ होगा with these two cards. So yeah, that is what we are getting, guys. Do let me know, guys, if this resonates. Thank you so much for watching, and I will see you again. Please, if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again in another reading. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2. तो आपने चूज किया है कैंडल, और ये बोल रहा है यू विल बी शोन द वे. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मैसेज दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस डार्क मैन. एज यू नो, दिस इज द कार्ड फॉर ऑल द 3 piles which spirit guides have given us as we were channeling this message for this person. You could never understand. चलिए देखते हैं. You will be shown the way. और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इनफ ये क्लियर कॉज का भी स्टोन है. यू विल बी शोन द वे. तो अगेन द सेम थिंग. ये इस इंसान ने आपको काफी कंफ्यूज करके रखा हुआ होगा. यू कुड नेवर अंडरस्टैंड दिस पर्सन एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. यू वांटेड टू बी शोन द वे कि ये इंसान सच में आपके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, इसके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है. यू रियली बेग्ड फॉर क्लैरिटी इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, तो ये चीज हम देख रहे हैं. लेट्स सी. Thank you, dear angels, for the guidance coming in. Whoa. Every hurricane comes to an end. इस इंसान के साथ जब आप साथ में थे, it was almost like being with a hurricane, एक storm. ये इंसान हमेशा आपके लाइफ में एक storm लेके आता था. एंड यू आर लाइक कि कब ये खत्म होगा. लेट देम गो. वाओ, डू यू सी दिस? लेट देम गो. So yeah, we know that this person was like a storm in your life, always creating storms in your life, and you were like कि क्या होगा? Let them go.
I want to read the message from this card. Give me a second. Let's read this together. You often take on the pain of others. You used to think it was because you are an empath, but these days you are not so sure. Sometimes it feels like other people are emptying their emotions into you and giving nothing in return. Sometimes we even feel we have inherited pain from those who come before us in our family tree. हो सकता है ये आपके फैमिली का मेंबर होगा कोई. This is your permission to let go. This is your permission to let go. Your life is ultimately about you, not what other people expects you to carry for them. Yeah, a lot of burden carrying for them. And this person is like, burdening you with everything. Always, emptying their emotions onto you. अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें, अपनी बातें, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी इच्छाएं आप पे लादना. बट इन टर्न यू गेट नथिंग आउट ऑफ दिस पर्सन. You exist for this person only when they need you. Otherwise, you don't exist at all. And yes, a total pure baggage as far as this person is concerned. आप इसके साथ काफ़ी ट्रैप्ड फील करते थे एंड यू रियली वांटेड टू बी शोन कि क्या ये इंसान ठीक है कि नहीं है. एंड मोस्टली यू वांटेड टू रन अवे फ्रॉम दिस द स्टॉर्म दैट दिस पर्सन वाज क्रिएटिंग इन योर लाइफ. बट यू वर डेस्परेटली praying for some kind of clarity for your relationship with this person. ये देखो टावर का कार्ड, द टावर कम्स आउट. क्योंकि ये घर बना हुआ है, ये टावर, आई थिंक दिस कुड बी समबडी वेरी क्लोज इन द फैमिली, मे बी योर हस्बैंड, वाइफ, समथिंग लाइक दैट, स्पाउस हो सकता है. एंड इट्स लाइक कि आपने घर को एक साथ रखने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये टावर का, ये जो घर है ये टावर कार्ड पे बना हुआ था. टावर इज अ वीक फाउंडेशन एंड इट ऑलवेज फॉल्स डाउन. क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स. Let's see आपकी relationship dynamics with this person. Before that, let's pull 2 cards from here. Joyfulness. कोई joy नहीं था इसके साथ आप जब थे. वेडिंग, एग्जैक्टली, शादी की बात हमने की, राइट. तो कुछ लोगों के लिए तो ये स्पाउस से रिलेटेड है. एंड यस, मुझे लगता है कि कुछ शायद शादी में भी शायद कुछ ड्रामा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं. एंड दिस कुड बी समथिंग, this could also be like there is a third angle to your relationship, third party, and impacting you. Relationship dynamics you had with this person. Queen of Wands in reverse. यहाँ पे है 5 of Wands in reverse. 9 of Swords, lot of stress, pain, hurt. आपने अपने दिल में छुपाया हुआ था इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा. 9 of Swords सबकॉन्शियस लेवल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेशनशिप में, दुख, तकलीफ, हर्ट, सर दर्द, हर चीज़ को आपने अपने दिल में छुपाया हुआ था. सबकॉन्शियस लेवल में ये कार्ड है, आप दिखा नहीं रहे हो किसी को, बट दिस इज व्हाट यू वर इन दिस रिलेशनशिप. यहाँ पे कौन सा कार्ड है? 8 of Pentacles in reverse. It could never be mend. 6 of Pentacles. ओके, 6 of Pentacles कॉन्शियस लेवल में है. आपने बस उससे, इस इंसान से यही एक्सपेक्ट किया था. बहुत बेसिक चीज़ें आपने इस इंसान से एक्सपेक्ट की थी, बहुत ही बेसिक. बिकॉज यहाँ पे 6 of Pentacles का कार्ड है. 6 of Pentacles के कार्ड में आप देखोगे कि कोई इंसान किसी को भिक्षा दे रहा है, भीख ही बेसिकली दे रहा है. आपको शायद उतनी भी चीज़ें नहीं मिली, आप उससे बस बहुत ही बेसिक आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस इंसान से. बट आपको बहुत दुख हुआ इस बात का कि इस इंसान ने आपको उतना बेसिक चीज़ भी आपको नहीं दिया. यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग.
6 ऑफ wands, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है आपकी, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना स्ट्रांग एक थर्ड एंगल है, क्योंकि ये अगर देखो तो ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। कुंडलिनी एनर्जी, दीज नागाज आर वेरी पैशनेट लवर्स, दैट टू ऑल्सो 2 ऑफ कप्स के कार्ड में रिवर्स है। तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेडिंग का भी कार्ड आया है और जॉयफुलनेस नहीं थी, ये थर्ड पार्टी एंगल लगता है। आप जिस चीज आपके रिलेशनशिप में, जो आप इस रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, इट वॉज अ थर्ड पार्टी एंगल, बनी कि आपके आसपास ही कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, पैशनेट सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके सराउंडिंग में। इस रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है ना, तो आपके इस रिलेशनशिप के सराउंडिंग में क्या चल रहा है, एक पैशनेट लव चल रहा है, कुंडलिनी एनर्जी, पैशनेट लव इन रिवर्स ऑर्डर, तो वो चल रहा था। 8 ऑफ wands इन रिवर्स में है, ठीक है। एग्जैक्टली आपने जो बेसिक लव एक्सपेक्ट किया था ना, आपको नहीं मिला, जबकि ये इंसान थर्ड पार्टी एंगल में एक पैशनेट लव में इन्वॉल्व है। लेकिन आपको पैशनेट लव तो छोड़ो, जो एक बेसिक रिस्पेक्ट देना है वो भी इस इंसान ने नहीं दिया। यानी कि आपकी ज़रूरतें, आपने अपनी ज़रूरतों को इस इंसान के रिलेशनशिप में एज फार एज यू आर कंसर्न बहुत ही मिनिमाइज कर लिया था। लेकिन वही होता है ना, जब हम अपनी ज़रूरतों को कम करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पैशनेट अफेयर हो रहा है, आपको बेसिक चीज़ें ही एक्सपेक्टेशन है इस इंसान से, पर वो भी नहीं मिल रहा है। 10 of swords, yes, 10 of swords is a total betrayal का कार्ड। 10 swords आपके बैक में, पाइल नंबर 1 में भी 10 of sword अपीयर हुआ है, हालांकि नॉट दिस कार्ड, दी अदर कार्ड। ओके, देर आर 2 10 of swords इन दिस कार्ड गाइज, बाय द वे, इन दिस डेक। मैंने यही डेक पाइल नंबर 1 में भी यूज किया है, पर वहां पे दूसरा 10 of sword आया है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको वो भी ड्रॉ हो रहा था तो। बट इस रिलेशनशिप में हुआ क्या फाइनली, आई डोंट नो इफ यू आर स्टिल इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, आई कैन नॉट टेल, बट ऐसा लगता है कि टोटल 10 ऑफ सोर्ड, अभी भी जैसे कि रिलेशनशिप बहुत ही पेनफुल है, आप में आपका दुख है, दर्द है, बट आई डोंट नो, ये वाले सोर्ड, इतने सारे सोर्ड्स इस क्रीचर में है, बट ये इंसान इसको आंख में आंख डाल के देख रहा है। आई डोंट नो व्हाई लाइक दिस, व्हाई लाइक दिस। इतना सारा सोड है इसके आंख में, ये आंख में आंख मिला के क्यों देख रहा है, व्हाई इज ही हर्टिंग सो मच। देखना पड़ेगा उसको क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को ये इंसान ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है, ये अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है, 9 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल इज अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट न्यू थिंग। और यहाँ पे एक इंसान ने ही हर चीज़ को उठाया हुआ है अपने कंधों पे, एक जैसे कि फैमिली का सारा बोझ बस एक इंसान के कंधे पे है, इस तरह के। ओके, फैमिली के कारण शायद आपने ये सारी चीज़ें टॉलरेट कर ली, बोलते हैं ना खून का घूंट पी के रह गए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। देख रहे हो ना, ये इंसान वैसे तो देखो इसने अपना बस एक जगह पे खड़ा है, बैरन लैंड है, बट इन दोनों कंधों को फैला दिया है और यहाँ पे सारी एक तरह का बर्डन इसने अपने फैमिली का उठा लिया है अपने हाथ पे। बट इसको करने में क्या प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है। ओके, यही तो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड क्यों आ रहा है। सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड।
यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत काम करने की कोशिश, रिलेशनशिप मेहनत करने के बाद भी वर्कआउट नहीं हुआ। ओके, आइडियली आपको लेट गो करना चाहिए था इस इंसान से, लेकिन आपने लेट गो नहीं किया। ओके, आपने, इट्स मोर लाइक एक्सक्यूज मी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट यू काइंड ऑफ, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है या जो भी है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है, वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एक पैशनेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ तो थर्ड एंगल पार्टी है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कोई भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, यानी कि रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, यहाँ पे भी दुख तकलीफ है, बेसिक चीज़ मांग रहे हैं हमको, वो भी नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में। पर फिर भी आपने ये दिखाया कि रिलेशनशिप काफी अच्छी है। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ काफी, आप 6 ऑफ वॉन्ड्स में एक वॉरियर जा रहा है, और हम यही बेसिकली समझते हैं कि ये वॉरियर ने युद्ध को जीत लिया है। ही हैज वन इट, ही इज हैप्पी, और लोग ताली बजा रहे हैं। बट यहाँ पे जो आप चीज दिखा रहे हो कि एवरीथिंग इज हैप्पी डैपी, यू हैव वन द थिंग, यू हैव नॉट वन द थिंग एक्चुअली, बट दिस इज वॉट यू शोड द वर्ल्ड दैट यू हैव वन। बट इस विनिंग के पीछे क्या है? 10 ऑफ सोड, आपने बहुत सारे सोड्स अपने पीछ में रखे हुए हो, बट यू काइंड ऑफ को एग्जिस्ट विद दिस पर्सन, यू अंडरस्टैंड? या तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। मुझे एक दो कार्ड्स का क्लैरिफायर चाहिए है, so that I can get little more clarity. Can I please have a clarifier for 10 of sword? Ten of sword backed by illusions, confusion and illusion. कंफ्यूजन एंड इल्यूजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, दो कार्ड्स आ गए हैं, लाइक टोटली कंफ्यूज एज टू व्हाट टू डू। यहाँ पे भी क्लाउड्स में घर बना हुआ है, घर की चिंता हो रही है। घर की चिंता करके ही कुछ डिसीजन मेकिंग हुआ है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस तरह की रिलेशनशिप है। Yes, you always had an intuition what to do, but you kind of always ignored it. Addiction. Whether you are addicted to a substance, food, people, sex, overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. Stubbornness. वर्दीनेस इशू है। यहाँ पे हमने बोला है ना कि आपने बहुत बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट की, क्योंकि आप अपने आप को उसके पार पे ला ही नहीं रहे हो। वो आपको गलत ट्रीट कर रहा है, बट यू आर लाइक ठीक है, मुझे कुछ भी भिक्षा मिल जाए वही काफ़ी है। सोल लेसन, कंसल्ट एक्सपर्ट। देखिए, सोल लेसन में कहीं ना कहीं सोल लेसन में आपका जो सोल लेसन इस रिलेशनशिप में होगा ना, टू वैल्यू योर सेल्फ।
you will come in. I don't know if this is a spouse or what, but it could be anybody. Just in case if this person is a spouse or a friend or a partner, this person is treating you this way so that you can finally learn to value yourself. और जब तक ये आपको सिखा नहीं देता, you were pushed to the corners, not in this reading, the other one. तब तक ये let yourself receive. You don't let yourself. देखो यहाँ पे तो वही है ना, let yourself receive the love and the care. ये भिक्षा की तरह क्यों एक्सपेक्ट करना है कि आपको भीख दे दे कोई लव का, केयर का, क्योंकि आप अपने आप को ही लव केयर नहीं दे रहे हो, तो आप दूसरों से कैसे अपने लिए लव एंड केयर मांग सकते हैं या फिर ले सकते हैं. सो लेट योर सेल्फ take. Allow others to give you loving care. Receive without guilt and apologies. Worthiness issue आ रहा है आपका, और यहाँ पे कोई सोल लेसन्स होगा. जब तक कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे ना, यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे इतना पैशनेट अफेयर करके रखा, तभी भी आपने ये शिट्स को टॉलरेट किया. क्यों? क्योंकि आप में सेल्फ वर्दीनेस है ही नहीं. और ये कब ठीक होगा? जब हम अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, तभी ये एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट की चेंज होगी. नहीं तो यहाँ पे हमारे सामने आके कोई भी इसी तरह से डांस करेगा. आप समझ रहे हैं ना? दिस इज अ टाइम फॉर ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ. एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो अभी हमने बात की, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है. अगर आप अपने आप को वर्दी का, जब आपको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आई डिजर्व दिस, यू टेल नो आई डोंट डिजर्व इट, तभी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा. जो जैसा मैंने बोला कि ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे सोल ग्रोथ का चक्कर है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ है. दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू. यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी. अगर आप आपको वैल्यू करना सीखते हैं तो this is the guidance coming for all the pile number 2 guys. I hope that this helps. Thanks for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now. Hello pile number 3, welcome to your reading. Let's see what you get to know about this person who confused you so much. और आपका कार्ड है Bell Announcement, and we will see how we get more guidance about this. Be aware of self delusions. So ये कार्ड आपके लिए आ गया है, तो हम इसको रखेंगे यहीं पे. सेल्फ डिल्यूजन्स, तो क्या आपने सेल्फ खुद को भुला के रखे हुए थे इस रिलेशनशिप में? There were things that you were seeing the red flags, but you were not taking actions, you were choosing not to see. कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है हमको. Gray sky, endings are inevitable. Of course, dealing with this relationship, being in this relationship was like being in the clouds, the dark gray clouds sky. उस तरह का guidance है. The world awaits you. चलिए यहाँ पे ये रख लेते हैं हम. अनाउंसमेंट है और ड्रैगन स्पिरिट है. बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही इल्यूजन्स में हैं इन दिस रिलेशनशिप. ये क्या आ गया? Despair. Okay, despair. Young woman and despair. Despair से तो हम समझ गए कि काफ़ी हताशा थी रिलेशनशिप में. और अनाउंसमेंट है what is the relationship dynamics like, dear angels? Awakening. Judgment का कार्ड.
यहाँ पे है द टेम्परेंस, 2 of Cups, द वाइज वन, 5 से हो गया हमारा हायरोफेंट, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, 3 of Sword, 3 of Sword है यहाँ पे। गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ, 2 of Wands, डिस्पेयर हो गया है यहाँ पे, डिस्पेयर के ऊपर ही आया है ये कार्ड। 3 of Wands, इन्वायरमेंट में क्या है, पेज ऑफ कप्स, एम्परर, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में, द नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है। किस तरह की रिलेशनशिप डायनामिक्स थी आप लोगों की भाई? यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि वर्ल्ड यहाँ पे एक तरह का चैप्टर ख़त्म हुआ पास्ट में, लेकिन फिर से एक स्टेप पीछे आ गए हम। क्यों आ गए पीछे? यहाँ पे तो बेबी से रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी है, यहाँ वूम्ब है, यहाँ से बेबी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। वर्ल्ड, आई थिंक one chapter of your relationship kind of almost was complete, but वहाँ पे कुछ बच्चे की कुछ चीज़ आ गई है, और जब बच्चे की चीज़ आई है तो हम क्या किए हैं, एक स्टेप पीछे आ गए हैं, और एक स्टेप पीछे आए हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़, एक चैप्टर ऑफ लाइफ ऑफ रिलेशनशिप वॉज अबाउट टू कम टू अ सर्कल, बट वहाँ पे ही कुछ बच्चे का इशू आया है और आप एक स्टेप बैक आ गए हो। माने कि अगर बच्चा से हर चीज़ें माने कि अच्छे से ब्यूटीफुली फुल सर्कल आती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ इशू हुआ है बेबी से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे फुल सर्कल होने के जगह पे यहाँ पे गांठ बढ़ गई है। क्योंकि ये वाला आपने देखा होगा, वर्ल्ड का कार्ड में ऐसा सर्कल बना रहता है, रीथ बना रहता है, लेकिन शायद बच्चे को लेके कोई चीज़ हुई है जिससे कि रिलेशनशिप में गांठ पड़ गई है, या फिर रिलेशनशिप के विक्ट्री में गांठ पड़ गई है और एक चीज़ बैक में आ गई है। रिलेशनशिप जो मुकम्मल होने वाली थी, एक स्टेप बैक ले लिया उसने। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो जिस तरह से ये लेडी है, अवेकनिंग जैसी कुछ चीज़ आ रही है, अवेकनिंग। यहाँ पे तो 2 of Cups, टेम्परेंस, बैलेंस दो रिलेशनशिप में बिगड़ा है बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ें हुई हैं, बच्चे को लेके कुछ चीज़ रिलेशनशिप में गांठ पड़ी है, यही चीज़ मैं पिक कर रही हूँ। एंड एक स्टेप रिलेशनशिप बैक में आया, उसके कारण रिलेशनशिप जो थी दोनों की, 2 of Cups, टेम्परेंस का कार्ड में 2 of Cups है, रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ा। और या डिस्पेयर आया, किसी को डिस्पेयर, मे बी वन ऑफ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कमिटिंग अ सुसाइड एंड ऑल दैट। The wise one, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने बहुत जगह आप गए हो, चीज़ों को ठीक कराने के लिए। यू हैव गॉन टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यज्ञ, होम, हर तरह की चीज़ें आपने की हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट फिर भी
ताकि आपका दुख तकलीफ जो हुआ है इन सारी चीज़ों से ना, कुछ किसी को तो बेबी से रिलेटेड इशू माने कि प्रॉब्लम्स होंगे, या बच्चा नहीं हो रहा होगा, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे स्पैरो है ना, देयर इज अ बर्ड हियर, 3 ऑफ सोड। तो आपके जो भी चीजें हुई यहाँ पे, काफी दुख तकलीफ हुआ है, एक स्टेप बैक आए हो, रिलेशनशिप इम्पैक्ट हुआ है, बैलेंस उसका बिगड़ा है, और दिल में काफी ज्यादा हर्ट हुआ है इसके कारण, ठीक है। और इस हर्ट को कम करने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हमने बताया बात की, उसको ठीक करने के लिए आप बहुत सारे आपने उपाय और रिचुअल्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप हमेशा यू आर लुकिंग आउट कि क्या कुछ ठीक हो सकता है, लुकिंग आउट, यू आर ऑलवेज लुक आउट ऑन द लुक आउट ऑफ कि ये चीज़ कैसे ठीक हो। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर उपाय, यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट थिंग विच इज क्रिएटिंग अ पेन इन योर हार्ट। जैसे कि कोई चीज़ की इच्छा हो, ज़्यादातर तो मुझे इच्छा बच्चे की ही लग रही है, पर वहाँ नहीं होने के कारण बहुत सारी यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, रिलेशनशिप में बैलेंस बिगड़ा एंड ऑल दैट। बहुत सारा उपाय किया, बच्चे नहीं होने के कारण दिल में बहुत हर्ट हो गया, सोड हो गए। आपने हमेशा चीज़ों को काफ़ी डिस्पेयर हुआ। कोशिश हमेशा यही थी कि कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिचुअल्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उपाय खोज रहे हैं। यू वॉन्ट समथिंग इन योर रिलेशनशिप, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन योर रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स इज अ पेज कमिंग इन योर रिलेशनशिप, राइट। एंड रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो एम्परर की एनर्जी है, होप्स में काफी एक स्ट्रांग एनर्जी है। रिलेशनशिप तो ठीक ठाक लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड तक आप पहुंचे भी हो। तो रिलेशनशिप में तो काफी फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिलीव है, शायद रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है, टेक इट फॉरवर्ड। इसीलिए यहाँ पे यू आर लुकिंग आउट ऑल्सो फॉर अ सोल्यूशन, वे आउट। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में आ गई है। पेज ऑफ कप्स इन्वायरमेंट में है, तो किसी तरह का न्यूज़ तो डेफिनेटली है, कुछ अच्छा न्यूज़ है। जो तूफान आया है यहाँ पे, आप उस बोट को बना रहे हो, लाइक यू आर पॉजिटिव एंड ऑल दैट। तो फिर अनाउंसमेंट क्या क्या काम है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कोई चीज़, इन सारी चीज़ों के कारण आपने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, क्योंकि द क्वीन इज नॉट वेकिंग अप फ्रॉम हर बेड। उसने अपने आप को बंद कर लिया है। बिलीव इन द स्कैर्सिटी, passion, miracle, yeah। नेगेटिव थिंकिंग ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, और तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है यहाँ पे। नेगेटिव थिंकिंग करके अपने आप को रूम में बंद कर लिया हो। इस रिलेशनशिप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज इन रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हुई हैं, सिचुएशनशिप्स हैं, यहाँ पे कुछ बेबी से रिलेटेड चीज़ है जिसके कारण कुछ है डिससेटिस्फैक्शन, हर्ट, पेन। बट अदर देन दैट रिलेशनशिप में तो मुझे कोई प्रॉब्लम, उस रिलेशनशिप के कारण ही बेबी से रिलेटेड कुछ डिस्पेयर है शायद। यंग वुमेन का कार्ड आया है हमको, यंग वुमन।
Emperor. All right. या कंसल्ट एन एक्सपर्ट इफ इट इज समथिंग रिलेटेड विद द बेबी, जो कि आप लोग बहुत सारे कंसल्ट कर रहे हो एक्सपर्ट्स को. Morning affirmations. Yes, you want something. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. 3 of Wands. You want something. Waves of prosperity and miracle cannot be coincidence. तो मुझे लग रहा है जहां तक अभी भी आप इस रिलेशनशिप में हैं, एंड यू शुड गिव अप योर नेगेटिव थिंकिंग. क्योंकि अगर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग गिव अप करते हैं ना, शायद आप लोग स्पाउस हो, तो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग अपनी गिव अप करते हैं ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड मिरेकल. समथिंग दैट यू वांट यू कैन गेट. तो रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लग रही है. यू पीपल आर वेरी स्ट्रांग. एम्परर की एनर्जी है रिलेशनशिप के लिए. एम्परर तो अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करता है, तो वहां तो कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है. यहाँ पे भी अगर देखो तो पेज ऑफ कप आपके एनवायरमेंट में है रिलेशनशिप के, यानी कि कोई न्यूज, कोई मिराकल आने की पूरी चांसेस है आपके रिलेशनशिप में. तो आप क्यों अननेसेसरली इतना नेगेटिव बन रहे हो? हाँ, हर्ट किसी चीज से जरूर रिलेशनशिप में हुआ है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन. Things can get really better for you. You shouldn't lose hope. Angels of healing are with you. Exactly. आपके रिलेशनशिप को, प्रॉब्लम्स को हील हो सकता है वो. ये प्रोस्पेरिटी का कार्ड, मिराकल का कार्ड एवं ही नहीं आ गया है. एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करिए. वैसे तो आपने डेफिनेटली कंसल्ट किया है, पर और भी कंसल्ट करिए, चीजें हो सकती हैं आपके लिए. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. Exactly. With the Emperor card in the hopes of your relationship dynamics, मुझे लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो ना, वो रिलेशनशिप में आप लोग या the other person is very protective about the relationship. They take full responsibility of this relationship. इसीलिए तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग हाथ पैर, माने कि डिस्पेयर जरूर है, बट दे आर नॉट किलिंग देमसेल्फ विद दिस डिस्पेयर. दे आर होपफुल टू फाइंड सम सोल्यूशन, सम वे आउट. यहाँ पे भी आप लोग काफी होपफुल है कि आपको कुछ रास्ता दिखेगा. यहाँ पे भी मिराकल्स है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है. यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ गया है. द ओनली थिंग इज द नेगेटिव माइंडसेट एंड द लैक इन द बिलीव इन स्कैर्सिटी की चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं. अनाउंसमेंट कुछ हो सकता है, कोई न्यूज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में हमने ऑलरेडी बात की है कि एनवायरमेंट में आपके क्या आ रहा है. कुछ तरह का पेज ऑफ कप, एक न्यूज आ सकता है. तो एक्सपेक्ट मिराकल्स इन योर रिलेशनशिप. ऑल इज गुड. डोंट focus on what you want. Passion, miracles, prosperity. जो चीज चाहिए उस पर फोकस करो. अननेसेसरी नेगेटिव माइंड मत रखिए. स्कैर्सिटी मत रखो. अनाउंसमेंट कुछ हो सकता है, कुछ न्यूज आ सकता है. यस, देखो ये पेज ऑफ कप्स कुछ न्यूज लेके, गुड न्यूज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में. तो एवरीथिंग इज वाओ. दिस इज अ वेरी डिफरेंट रीडिंग. So guys, this is the guidance for all the pile number 3. I hope that this helps you guys. You can heal your heartbreak. So if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again with another reading. Bye.